Now today we will do exercise of chapter 20 trip to space, and first exercise is fill in the blanks. Now first exercise, there are planets in the solar system. There are fill in the blanks planets in the solar system. And answer me. 8. 8. 9. 9, ma'am. 8. Okay. This is right answer. There are 8 planets in the solar system. Now next fill in the blanks is meteors are also called fill in the blanks stars. Meteors. Shooting star. Yes, very good. Very good. Shooting star. क्या रिवीजन करा रही है? Okay. The meteors are also called shooting stars. Meteors को हम shooting stars भी कहते हैं. Now third is Neil Armstrong was the first person to land on the fill in the blank. Moon. Very good. Now fourth is fill in the blank was killed when her spacecraft crashed on its way back on the earth. ऐसी कौन सी एस्ट्रोनॉट थी? कल्पना चावला. Very good. Very good. मैम को डबल क्लिक नहीं कर रही है. Chawla was killed when her spacecraft crashed on its way back on the earth. उनकी मौत कब हुई थी? कल्पना चावला की मौत उनके स्पेसक्राफ्ट के अर्थ पर वापस लौटने के टाइम हुई थी. Now next is last is fill in the blanks was the first Indian satellite to land in space. आर्यभट्ट. Yes, आर्यभट्ट. आर्यभट्ट was the first Indian satellite to land in space. इंडिया का जो सबसे पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है. Okay? All of you understood fill in the blanks? Yes, ma'am. Okay. All of you completed in your EVS book. Now second exercise is pick the correct answer. And here we write only answer. So first is which of the following is not a constellation? Neptune. Okay, very good. कि इनमें से कौन सा नक्षत्र नहीं है? एंड ऑप्शंस आर अर्चा मेजर, सप्तर्षि, नेपच्यून एंड ओरियन. एंड ओनली नेपच्यून इज द प्लैनेट. नेपच्यून क्या है? प्लैनेट है और बाकी के सब कंस्टेलेशंस है. नाउ आंसर इज Answer is Neptune. And second is which of this is a dwarf planet? इनमें से कौन सा dwarf planet है? Very good. Answer is Pluto. Earth is called Very good. All of
of you very well understood chapter 20. Now third is Earth is called the blue planet because of the presence of options are water. अर्थ हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंस है। वाटर के प्रेजेंस की वजह से ही अर्थ हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। Now fourth is number of planets in the solar system. And answer is 8. भिखारी बनना है तो भिखारी सोलर बनना सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? नंबर ऑफ प्लैनेट 8 है। Now last is astronaut travel to space in craft. And answer is spacecraft. And answer is spacecraft. एस्ट्रोनॉट किससे स्पेस जाते हैं? उस यान को हम उस व्हीकल को स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। उस स्पेशल व्हीकल को हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। Now next exercise match the following. All of you write completed? Yes, ma'am. Take the correct answer. Yes, ma'am. Yes, Next exercise match the following. पढ़ने आता तो पढ़ लो, क्या लिखा ऊपर ही के बगल में कुछ टाइम। Match the following and here we write two columns, column A and column B. Okay. First is ऐसे ही Artificial satellite. सुनाई नहीं देता हमको। Scientific research. देख लो। column A. First is Artificial satellite. स्पेस टाइम। second is Mars and Venus. Dwarf planet. डार्क प्लैनेट, मेट्रो, Third is dwarf planet. And fourth is meteor. Shooting star. Meteor. Fifth is Orion and Scorpio. एक दो छोटा वाला। हमको एक And second side we write column B. जब मेरा वहां से पार्ट नहीं पाएगा तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बहुत लोग चलो आगे। आएगा ही नहीं, देखो आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। A is Pluto. अच्छा, हम जितना आगे जाएंगे तुम B is constellation. Constellation. And C is shooting star. D is scientific research. And E is planets. E is planet. So first is artificial satellite. So artificial satellite. Scientific research. ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू हमें साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प मिलती है। यानी साइंटिस्ट क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। नाउ सेकंड इज मार्स एंड वीनस।
उनके planets हैं. Mars and Venus are planets. Please mute your phone. Now, third dwarf planet. Pluto. Dwarf planet is Pluto. Pluto is dwarf planet. Now, fourth is meteor. Shooting star. Meteors is also called shooting stars. Meteors को हम shooting star भी कहते हैं. Now last is Orion and Scorpio. Orion and Scorpio is constellations. Na? Orion and Scorpio are constellations. And Ursa Major is also constellations. Constellation यानी नक्षत्र ना नक्षत्र होते हैं. ओरियन, स्कॉर्पियो, उर्सा मेजर are constellations. All of you understood? Match the following. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next exercise: true or a false. All of you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next exercise: quiz time. Okay, and here we write only answers. Here we write only answer. Now, fourth question is: which causes a solar eclipse? Telescope. टेलीस्कोप आंसर कैसे हो जाएगा? पहले मुझे क्वेश्चन रीड करने देंगे. What causes a solar eclipse? किस वजह से सूर्य ग्रहण होता है? सोलर इक्लिप्स यानी सोलर इक्लिप्सेस होते हैं. सूर्य ग्रहण किसकी वजह से होता है? मैम चांद के सामने आने से. हाँ, मून के सामने आने से ना. तो अभी टेलीस्कोप कैसे आंसर किया था? When the moon comes between sun and earth. Answer is When the moon comes between sun and earth. जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है तो सूर्य की रोशनी अर्थ पर नहीं पड़ती है और इसी वजह से सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है. सो राइट डाउन आंसर. मैम कॉपी पे करना है. यस, नोटबुक में आपको राइट करना है. राइट करना. Now next is answer is when the moon between the sun and earth. जब मून क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है. Now second is which was the first country to launch a satellite into space? America. No, this is wrong. India. Yes. China. Okay, keep quiet. आंसर में सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कजाकिस्तान ने किया था.
कजाकिस्तान ने किया था, जो कि पार्ट है सोवियत यूनियन का और जिसे कि अब हम रशिया भी कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? फर्स्ट इज जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कजाकिस्तान ने किया था और तब सोवियत यूनियन का वो पार्ट होता था। कजाकिस्तान नाउ पार्ट इज सोवियत यूनियन। Okay, answer is Kazakhstan. Yes. मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। मैम हमें भी नहीं क्लियर दिख रहा। मैम क्लियर दिख रहा है। मैम हमें दिख रहा है, मैम दिख रहा है। Now answer is Kazakhstan part of Soviet Union. जब ये कजाकिस्तान ने लॉन्च किया था सैटेलाइट, तब वो सोवियत यूनियन का पार्ट था, जिसे कि आप रशिया भी कहते हैं, रूस ना। नाउ थर्ड इज सन इज अ बिग स्टार ऑफ बर्निंग गैसेस, ट्रू और फॉल्स? सन जो है बर्निंग गैसेस का बड़ा स्टार है। ओके, एंड आंसर इज ट्रू। आंसर इज ट्रू। सन क्या है? सन वास्तविकता में जलती हुई गैसों का बड़ा स्टार है। नाउ फोर्थ इज विच प्लैनेट इज ऑफ्टन कॉल्ड द रेड प्लैनेट? किस प्लैनेट को मार्स? आंसर इज मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। Answer is Mars. Mars is also called red planet. Now, this planet is often called the morning star. Venus. No. Venus. मरकरी मैम। Mercury. मैम स्कूल कब खुलेंगे? बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्कूल कब ओपन होंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। Now next question is, all planets orbit the earth in different directions. False. False. आंसर इज फॉल्स। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या अर्थ की तरह जो दूसरे प्लैनेट्स हैं अर्थ के विपरीत डायरेक्शंस में मूव करते हैं? नो। जब सारे के जो एक प्लैनेट्स में से सिर्फ एक प्लैनेट को छोड़ के बाकी के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? अर्थ के साथ सेम डायरेक्शन में सन को जो रिवॉल्व करते हैं ना, सन के ही डायरेक्शन में, अर्थ के ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। एंड आंसर इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट इज विच इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा प्लैनेट सन से क्लोजेस्ट? मरकरी। एंड आंसर इज मरकरी। सन से सबसे नजदीक में कौन सा प्लैनेट है? एंड आंसर इज मरकरी।
Which is the hottest planet of the solar system? Mars. Venus. And answer is Venus. वही तो सबसे ज्यादा आपको कुछ भी बोलना है ना, मरकरी, वीनस, कुछ तो आंसर होगा ही होगा ना। सो राइट आंसर इज Venus. right answer is Venus. Now ninth is, what is the name of a place that uses telescope and other scientific equipment to research space and astronomy? आपको उस प्लेस का नेम, नो, आपको उस प्लेस का नेम, International Space Station. यस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आंसर इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये ऐसा प्लेस है जहां से टेलीस्कोप और जो भी दूसरी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है या एस्ट्रोनॉमी के लिए, तो उस प्लेस का नाम होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। SS। इन शॉर्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम शॉर्ट में ISS भी कहते हैं ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, अर्थ इज लोकेटेड इन दिस गैलेक्सी? The Milky Way. मिल्की वे ना। The Milky Way. मिल्की वे। द मिल्की वे। अर्थ जो लोकेटेड है वो हमारी किस गैलेक्सी में लोकेटेड है? मिल्की वे में ना, आकाश गंगा, द मिल्की वे। सो ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड क्विज टाइम के जो आंसर्स हैं, राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपको राइट डाउन किसमें करना है? EVS नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, सो Yes, ma'am. ओवर। Okay, ma'am. Thank you, ma'am.